Okay, so in the last class, we were discussing about the BRD. So, Nancy, can you please tell me what was the content of BRD we have learned as of now? कुछ याद है? Yeah, hi Shashank. Good evening. Shashank, good evening. Shashank, not able to hear you. Okay, ठीक है. So what I was saying, Nancy, are you? Good evening, sir. Good evening, Shashank. Good evening. Okay, so Nancy, I was asking, do you remember the content of BRD that we have learned as of now? Yes, sir. What is the content of BRD? Can you please tell me? सर आपका आवाज थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं आया. Haji, my question is, in yesterday's session, we were going through about the BRD, right? Okay. So What what is? are the content of BRD that we have learned as of now? बाहर हो क्या Nancy? हाँ सर, थोड़ा रोड पे थी पर मैं बता देती हूँ सर. कंटेंट ऑफ बीआरडी ना. हाँ जी, हाँ जी. रोड पे हो तो मत बताओ Nancy, कोई बात नहीं, मैं शशांक से पूछता हूँ. It's fine. हाँ हाँ, कोई बात नहीं Nancy जी. हाँ. Okay. Shashank, what are the content of BRD that we have learned as of now? Sir, the contents of the BRD are project description. नहीं वो नहीं होगा ना. Hello. हाँ जी. खुद दिए उसकी दो. Hello. Yeah, please continue. हाँ शशांक continue. नहीं वैसे. Sir, I haven't gone through the recordings. Okay, you have not gone through the recording. Nancy, Yeah, yesterday's बोलोगी? accounts. सर बताऊं मैं. हाँ हाँ बताओ ना. सबसे पहले तो कंटेंट में समरी आ जाता है सर. Okay. एंड उसके ड्राइवर्स आते हैं. हाँ जी. प्रोजेक्ट ड्राइवर्स. हम्म. एंड मतलब हम उसको बिजनेस ड्राइवर्स भी कहते हैं सर. बेस ड्राइवर ही और कहते हैं उसको. हाँ जी. हाँ सॉरी सर. जी. प्रोजेक्ट स्कोप हाँ जी. एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो हमने छोड़ आपने दे एक वो टेबल टाइप बनाया था जिसमें रिक्वायरमेंट्स लिखा था हमने. ओके. लेट्स गिव 1 मिनट ओनली. गिव 1 मिनट ओनली. सॉरी सर. हेलो.
Okay. Sorry, Nancy. It was urgent, so I need to speak. Nancy ji, can you please tell me the content of BRD? Yes, sir. Sir, summary Yes. and business drivers, Okay. project scope, Mm-hmm. business requirements, Yes. um, project constraints भी होता है सर. Correct. So I'm repeating, guys. अच्छा वो Nancy, very good. जितना याद था उसके लिए appreciated. So we are having multiple content of BRD, guys. Okay. So जैसे आज सर्विस में ज्वाइन किया, let me repeat for in 2 minutes for service as well. So we are learning the business requirement document. Okay, this document is helping you to document your requirement. आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट यूज करते हो उसको हम बीआरडी बोलते हैं. द कंटेंट ऑफ द बीआरडी विल हैव द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, then the description in one line, the date on which you have created the BRD, version, then you are having the document revision, approvals, introduction. In the introduction, you are having project summary, objective, background, business driver. Then you are having project scope. In project scope, you are having in scope, out of scope functionality, system perspective, assumption, constraint, risk, business process overview. In business process overview, you are having the current business process and the proposed business process. After that, you are having your requirement section where you are having the function requirement, non-function requirement. Okay? तो ये हमने अभी तक पढ़ा यहाँ तक. तो whenever I'm going to ask the same question from you, the expectation will be आपको उसी हिसाब से आंसर भी देना है. ठीक है, जिस रफ्तार से मैंने दिया है उसी रफ्तार से आपको भी आंसर देना है. सर सुभाष है. हाँ सुभाष बोलो. सर आई वाज आस्किंग कि ये बीआरडी से मुझे ड्राइव पे मिला नहीं, एक्चुअली मैं रिवाइज नहीं कर पाया था. ड्राइव पे डाला नहीं क्या मैंने, तो उसको डाल देता हूँ आज फिर. अच्छा सर, ठीक ठीक. जस्ट पुट इनटू द ड्राइव, डाल देता हूँ उसको. ठीक. सॉरी सुभाष फॉर द इनकन्वीनियंस. नो वरी सर, सॉरी सर. अरे नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ. ठीक है, I'll put today या tomorrow. थोड़ा सा वो सर दर्द है तो देखता हूँ कितने बजे क्लास खींच पाता हूँ. ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द फंक्शन रिक्वायरमेंट. इन द फंक्शन रिक्वायरमेंट गाइस वी आर हैविंग द, जब मैंने कल आपको एग्जाम्पल बताया था राइट फंक्शन रिक्वायरमेंट का, एक तो मैंने आपको बताया था बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, रेगुलर डिपॉजिट, या आपकी आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के हैं. और जो 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग में जो रिक्वायरमेंट कल देखे थे फंक्शन रिक्वायरमेंट, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. ओके, लेट मी अगेन गिव यू द वॉक थ्रू. एक बार वापस दिखाता हूँ मैं आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट, तो आपको वापस याद आ जाएगा. So for what are the function requirement? Function requirement are the set of requirement which are going to define some kind of functionality. Okay? जो किसी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट. जैसे अगर आप 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग के फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखोगे तो ये हमने कल देखा था. A secure online application form shall be developed containing all the mandatory fields. ठीक है, checkbox should be available on the online account opening application form. Then we have learned about a notification email shall be sent to the customer personal email address once he or she finishes the filling the first page. मतलब जो भी आपके requirement है, a percentage indicator must appear at the top of the each page of the online account opening. So whatever is your requirement which is going to give some kind of functionality and which are going to define some kind of functionality, that will come as a part of your functional requirement. ठीक है, फिर हमने उसके बाद फंक्शन रिक्वायरमेंट में हमने देखा जनरल रिक्वायरमेंट. तो हमने जितनी भी बातें की, एवरी रिक्वायरमेंट वो होता है जनरल रिक्वायरमेंट. देन वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट यस्टरडे. So what are the security requirement? The security requirement are the set of requirement which are going to define some kind of security feature. Okay, security feature मतलब जैसे अगर मैं 2 बार, if I am giving incorrect password for more than 2 times in my application, then it should block my user ID. If I'm going to make a transfer of more than 10 lakh rupees or more than 2 lakh rupees from my debit card, it should ask the another level of verification. It should ask my debit card का detail. OTP is coming to you. That is also one kind of you can say सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. ओके, तो जो भी रिक्वायरमेंट आपके इससे सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं, एवरी रिक्वायरमेंट विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज योर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. ओके,
तो व्हाट आर द काइंड ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स? आप कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट लेते हो जिसका पर्पस होता है किसी भी रिपोर्ट को जनरेट करना। ओके, जैसे अगर आप मान के चलो एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हो, तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग द मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कैन बी, जब मेरा एप्लीकेशन बन जाए, ओके, तो मुझे पता चलना चाहिए बाय एंड ऑफ द डे कितने लोगों ने मेरे एप्लीकेशन में लॉग इन किया है, इसका रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए। तो दिस इज माय वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। So another requirement, how many transaction got successful, how many transaction got fail in with the help of Axis Bank mobile banking application. This is another reporting requirement. So whenever your requirement are having any relevance with your reports, कोई भी अगर रिपोर्ट बनाते हो आप तो वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। ओके, देन यू आर हैविंग यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर यूजिबिलिटी या यूआई और यूएक्स के रिलेटेड जितने रिक्वायरमेंट होते हैं, आपका एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, लोगो कहाँ रहना चाहिए, कलर थीम क्या रहेंगे, डू वी हैव एनी एडवर्टीजमेंट ऑन द फर्स्ट पेज एंड ऑल। सो एवरीथिंग विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ओके, शशांक, would like to add any usability requirement, कुछ idea? Sir, Would you know any usability requirement for Axis Bank mobile banking application? Would you like to uh, add? sir, pardon, I'm not audible to you properly. Hello. सर मिस किया, सर क्या बोला मिस्टर संग आपने? शशांक हेलो। Hello. हाँ सर संग, बता हाँ पाओगे, सर, ट्राई करोगे? sir, repeat the question, sir. My question is, there are multiple usability requirement. Okay. Okay. What are the Okay. usability requirement? UI UX से रिलेटेड जितने रिक्वायरमेंट होते हैं उसको यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, Okay. जैसे मान के चलिए आपका एप्लीकेशन है और उस वाले एप्लीकेशन में जो आपके फ्रंट एंड पे जो भी दिखता है, ठीक है, वट एवर Okay. थिंग्स यू आर एबल टू सी इन द फ्रंट एंड, एवरीथिंग विल Okay. कम एज अ पार्ट ऑफ योर यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। Okay. आपका फॉन्ट कैसा रहेगा या आपका लोगो कैसा रहेगा, एवरीथिंग विल कम एज अ पार्ट ऑफ यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। वुड यू Okay. लाइक टू गिव एन यूजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू मी? Uh, I need to have a customer support, uh, like, mm, हाँ, आई वॉन्ट टू help. हैव कस्टमर सपोर्ट हेल्प डेस्क काइंड ऑफ, एक लड़की दिखनी चाहिए, ओके, जो पूछेगी हेलो डू यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, राइट? Yeah, yes, sir. Correct. I understand your feeling, Sasank. Very good. So whatever requirement we are going to have as a part of usability, क्योंकि दिखने में जैसे let me show you the example guys. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ICICIbank.com, तो यहाँ पे जितने भी चीजें आपको दिखने वाली हैं, ठीक है, if you see this, ये देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ICICI का लोगो आ रहा है, ठीक है, यू आर हैविंग द डिटेल्स। उसके बाद एक आपका हार्ट बन के आ रहा है। हार्ट क्या दिखा रहा है, क्लिक करने पे समझ में नहीं आ रहा है, मैं छू के देखता हूँ हार्ट को। सेव्ड फॉर यू, ओके, सेव्ड फॉर यू कुछ अगर ऐसा है तो वो आ जाएगा। एक लड़का हाथ फैला कर रहा है एक्सेसिबिलिटी के लिए, ओके, माइक इज अवेलेबल फॉर यू। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन सी इन द ICICI बैंक की वेबसाइट। तो जितने भी यूआई और यूजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट होते हैं वो आपके यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द केस Okay. जब आपको नई स्कीम बनाने जाते हो तो इसकी रिक्वायरमेंट आती है। अगर ये बहुत ही हाई लेवल का रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट इज वेरी हाई रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आपका यूआई या यूएक्स टीम जो होगा वो इन्वॉल्व होगा फॉर डेवलपिंग ऑफ दिस, क्योंकि उनको ज्यादा इसका नॉलेज होता है, दे विल एबल टू गिव। पर अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत कुछ है तो ऐसा डीए भी देख लेता है यहाँ पे। तो दिस इज योर अनदर रिक्वायरमेंट टाइप जो कि आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ही आता है। Then you are having your audit requirement. What are the type of, what is audit requirement? So audit requirement are the set of requirement which are going to have relation with the audit points.
Okay, so let me tell you one of the examples. So we are having one of the application guys जहाँ पे people can do banking transaction. ठीक है, अब बैंक ये चाहता है कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन में एडमिन की डिटेल्स है, मतलब आपके कुछ इंटरनल यूजर्स भी होंगे जिनके पास एडमिन की डिटेल होगी, उनकी एक्टिविटी ट्रेस होनी चाहिए, मतलब सम एडमिन यूजर काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो उसकी ऑडिट ट्रेल बननी चाहिए. सो वॉट एवर रिक्वायरमेंट आर रिलेटेड टू योर ऑडिट, दैट विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिक्वायरमेंट. ओके, एग्जाम्पल यू वर्किंग फॉर सम ऑफ द प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको ऑडिट की रिपोर्ट्स बनानी है एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, दैट विल आल्सो कम एज अ पार्ट ऑफ, दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिक्वायरमेंट. तो जितने रिक्वायरमेंट आपके ऑडिट से रिलेटेड रहते हैं, एवरी रिक्वायरमेंट विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिक्वायरमेंट ऑल्सो. So guys, Sarvesh, Nancy, Sasank, Subhat, have you understood? Sir, can you please repeat it once again, Which please? one? Which one? Audit report, audit report. Okay. So audit requirement, again repeating, right? So audit requirement is a kind of requirement which will relate with some audit points. आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट जो ऑडिट से रिलेटेड होती है, वो आपकी रिक्वायरमेंट ऑडिट के रिक्वायरमेंट पे आ जाती है. जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि आपको एक एप्लीकेशन है आपके पास, और उसमें ऑडिटर चाहता है कि सम काइंड ऑफ डिटेल शुड बी और सम काइंड रिपोर्ट शुड बी जनरेट ऑन डेली बेसिस, कि कितने यूजर्स ने आज लॉग इन किया, या फिर जो भी ऑडिट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है गई, वो आपकी ऑडिट रिक्वायरमेंट में आती है. एग्जाम्पल, आपके ना कुछ बैंकिंग के एप्लीकेशंस होते हैं. ओके, एग्जाम्पल अगर आप लोग को पता होगा, For एक्सिस. example, sir, हाँ सर जैसे सिविल वाला सिविल रिपोर्ट, हाँ जी, जैसे सर सिविल रिपोर्ट आल्सो कैन बी एन ऑडिट रिपोर्ट. सिबिल भी ऑडिट में नहीं आएगा, नहीं, वो रिपोर्ट में आएगा. अच्छा. अब मान के चलो आपका कोई एप्लीकेशन है बैंक का इंटरनल, हम्म. तो एक्सेस में आप लोग कौन सा एप्लीकेशन है, अच्छा एलओएस सिस्टम मान के चलो. ठीक है, यू गाइस आर हैविंग सम बैंकिंग नॉलेज एज वेल. सो एलओएस सिस्टम है आपका, सिस्टम का नाम है पिनिकल. उस सिस्टम बहुत सारे यूजर असाइन होते हैं, तो वो यूजर जो एक्टिविटी करते हैं दिन भर की, उसका बैकएंड में एक लॉग क्रिएट होता है. यस यस. यही चाहता है बैंक और आरबीआई कि जो भी इंटरनल बैंकिंग एप्लीकेशन हैं, इफ यू आर डीलिंग विद द पीपल मनी, तो जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसका बैकएंड में एक ऑडिट ट्रेल बनना चाहिए, इसको ऑडिट लॉग भी बोलते हैं. तो दिस विल कम एज अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिक्वायरमेंट. अंडरस्टूड? यस सर. yes, sir, yes, sir. ठीक है सर. ओके, नाउ दिस वाज पार्ट ऑफ आवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट. शशांक, अंडरस्टूड? Yes, sir, understood. सुभाष, यस सर. सर्वेश, Nancy, Nancy, सर्वेश, अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. ठीक. Okay, now the another set of requirement that is loading is your non-functional requirement. Okay, me one guys. ओके, अभी तक जो रिक्वायरमेंट हमने पढ़े दैट वाज द पार्ट ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अब मैं आपको बता रहा हूँ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. बहुत ध्यान से सुनना, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. पर एक और चीज, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. व्हाट आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है. दे विल टेल यू, ओके यू हैव प्रिपेयर्ड द बीआरडी, ओके यस, कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट? So functional requirement we will be able to define. So all the requirement which are going to define some kind of functionality, that will be the functional requirement. जैसे सर अगर मैं एक्सेस बैंक मोबाइल बैंक, हाँ जी कोई बोल रहा है कुछ? Okay, no. So functional requirement will be the set of requirement which are going to define some kind of functionality. जैसे आपका लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन, बैलेंस इंक्वायरी, फिक्स्ड डिपॉजिट, यूपीआई, ये सारे रिक्वायरमेंट आपके किसमें आते हैं?
functional requirement में. Then you are having another set of requirement, that is the non-functional requirement. Non-functional requirement will not define any functionality. They are going to define health of your application, right? कि आपका एप्लीकेशन का हेल्थ कैसा है. हेल्थ विल कम एज अ टर्म इन द वी कैन से पैरामीटर ऑफ टाइमिंग, कि आपका सिस्टम कितने जल्दी लोड हो जाता है. सेकेंड, इट विल आल्सो कम एज अ पार्ट ऑफ हाउ योर सिस्टम इज बिहेविंग. कौन कौन से वर्जन ऑफ एंड्रॉइड में ये सपोर्टेबल रहेगा, या iOS के कौन से वर्जन में सपोर्टेबल रहेगा. So this all will come as a part of your non-functional requirement. So if you read here, non-functional requirement will include the technical operational requirement that are not specific to a function. This typically include the requirement such as the processing time, concurrent user, and the availability. ये किसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट को डिफाइन नहीं करेंगे. दे आर गोइंग डू नॉट डिफाइन द फंक्शनलिटी, बट दे आर गोइंग टू डिफाइन देयर हेल्थ. हेल्थ इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, कितना प्रोसेसिंग टाइम आपको लगता है, कितने करेक्ट यूजर उसमें एक साथ लॉग इन कर सकते हैं, और उनकी एबिलिटी क्या है. ओके, इफ आई वांट टू शोकेस 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग का नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखाता हूँ. Sir, it's like a performance of the website. हाँ, ये भी Is it? आएगा. यस यस, परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट विल आल्सो कम एज अ पार्ट ऑफ योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. Like correct. लॉगिन करने के कितने देर बाद होम पेज डैशबोर्ड ओपन हो रहा है. बहुत बढ़िया. दिस विल पार्ट ऑफ योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कि वंस यू आर प्रोवाइडिंग योर करेक्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, देन हाउ मच टाइम योर एप्लीकेशन विल टेक टू लॉगिन और गोइंग टू डैशबोर्ड. वेरी गुड. दिस इज द सुभाष, राइट? ठीक सर. यस सर. वेरी गुड सुभाष. दिस इज पार्ट ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अगर आप यहाँ 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग का देखोगे तो पहला ये बोलता है ब्रांच सर्विस ऑफिस स्टाफ to complete the online account opening process upon the customer visit within the turnaround time of 1 minute. 1 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए. जब वो सब कुछ करके आता है तो जो टर्न अराउंड टाइम है फॉर ओपनिंग द एप्लीकेशन, फॉर ओपनिंग द अकाउंट इज 1 मिनट. सेकेंड, अ न्यू हाई प्रायोरिटी आइटम to be maintained on the queue system for 1 minute account opening and account related services. मतलब उसको जैसे अगर आपके पास 9 आइटम है, जो आपको जो अकाउंट है तो आपको हाई प्रायोरिटी पे खोल दे तो पहले आएंगे आपके पास. बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर मस्ट कवर ऑल 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग सिनेरियो. कहाँ के लिए, वेदर इट इज प्रोसेस लोकली या अगर आपका अब्रॉड में होता है. तो 1 मिनट अकाउंट ओपनिंग शुड बी अवेलेबल फॉर योर इंडिया एज वेल आउटसाइड द इंडिया एज वेल. Okay, so this will be part of the non-functional requirements. Again, I'm repeating, what are the non-functional requirements? Non-functional requirements are the set of requirements that will define the processing time, concurrent user, health of your application, everything, but it will not define some kind of functionality. So this will be your non-functional requirement. So one non-functional, okay, so for our ICICI, no, for our Axis Mobile Banking application, one non-functional requirement example has already given by Subhan. Sir, if I providing the login ID and password correctly, the system should allow me to log in so much of time within a fraction of a second. This is the one example. Now, Tasank, I want you to tell me one non-functional requirement for Axis Bank mobile banking application. Tasank, before I ask the question, have you understood non-functional requirements? Yes, sir. I need to rewind this audio twice. Why? You're outside? No, sir. I'm in this one. I'm in hospital. Okay. Okay, you're in hospital today. Sir. No problem. Take your time. Are you fine? Yes, sir. I'm fine. No problem. I just came to check up. Okay, take care, Sushant. Okay. Nancy, one non-functional requirement here. Nancy बाहर ही है. Okay. Service, one Yes, sir. non-functional. क्या क्वेश्चन है मेरा? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई. मैं थोड़ा दूसरे रूम में चली गई थी, मोबाइल इधर रखा हुआ था. ये बढ़िया है. ये बढ़िया होता है. Very good. नहीं, my मतलब question मैं was- क्लास में ही थी, बट एक कुछ सामान रखने के लिए उधर चली गई थी, इसलिए आपका जी, कुछ जी. कर नहीं Okay. पाई. Have you understood the non-functional requirement?
अ लिटिल बिट सर, थोड़ा बाहर थी बट थोड़ा थोड़ा समझ में आया था। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ मैं एंड से, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। नॉन फंक्शनल हाँ। रिक्वायरमेंट आर द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो किसी फंक्शनलिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। इट इज गोइंग टू टेल यू द हेल्थ ऑफ एन एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग टाइम, हेल्थ, कंकरेंट यूजर, अवेलेबिलिटी, इन सबको दिखाते हैं, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था सुभाष ने, मैंने उससे पूछा सुभाष, अगर हम लोग एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां पे आप मुझे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताओ। उन्होंने बोला कि सर, इफ आई प्रोवाइड इन द लॉगिन पेज, इफ आई प्रोवाइड करेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, माय सिस्टम विल अलाउ यूजर टू लॉग इन इनटू 1 सेकंड। उन्होंने कोई फंक्शनलिटी नहीं, टाइम से रिलेटेड उन्होंने बता दिया, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताया उन्होंने। नाउ यू टेल मी अनदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके सर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सर इसमें देखो देखो, चलिए दिखाता हूँ, हेल्प करता हूँ। ये देखो, हाँ। दिस टिपिकली इंक्लूड रिक्वायरमेंट सच एज अ प्रोसेसिंग टाइम, concurrent यूजर अवेलेबिलिटी। यस सर। इसको देख के बताओ, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कोई अगर आता हो तो आपको दिमाग में। Sir, for example, नहीं नहीं नहीं, हु इज टेलिंग? Shashank. नो सचान, आई विल आस्क यू अगेन। Okay. You just ready with your answer, after this I will ask you. सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं, जैसे एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद हम जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज किया तो वो कितनी देर में लोड हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो भी इसमें आ जाएगा सर? हाँ जी, वो भी इसमें आ जाएगा। आफ्टर ओपनिंग द एप्लीकेशन, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन इन्वेस्टमेंट, इट विल ओपन विद इन 0.1 सेकेंड। उसका यस सर। रिस्पॉन्स टाइम आना चाहिए। वेरी गुड। हाँ शशांक। Sir, it should auto save the details provided by the customer within a fraction of second, within or ऑटो सेव, auto save. जैसे एग्जांपल। Suppose the client provides the details of the other card or whatever the authentication they have to do now, it has to be done within No, okay, 30 okay, sorry, seconds. sorry. I'm asking you to give example from Axis Bank mobile application. Okay. Um, oh, let me think, sir. हाँ, you need to think. हाँ. Sarvesh? Sarvesh? Are you there, dear Sarvesh? ठीक है. Now let me tell you one or two more example. Example, if the Axis Bank mobile application should be available or should be support for the Android version greater than 7. Okay, it should be available for all version of iOS. Okay, got it, sir, now. Right? Yeah, Another yeah. requirement, we can say non-functional requirement. If I am not doing any activity in my mobile banking application, it should automatically log out within 2 minutes. Okay? Non-functional requirement. Another non-functional requirement, at a time, 10 lakhs user or 20 lakh user can log into the application. Non-functional requirement. Another requirement is my Axis Bank mobile banking application should be available for 24/7. ठीक है? So this set of requirements will come as a part of non-functional requirement. Understood? Sasank, Nancy, Service. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. सर हाँ जी, तो चलिए. The next content of BRD is your appendices. Appendices and glossary में क्या आता है? What all short form you have used as a part of your requirement? आपने जितने भी short forms use किए हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं. If you see in the list of appendices or list of acronyms, you will have the CSR, Customer Service Representative, TSO, Customer Service Officer, TIF, Customer Information File. मतलब जो भी आपने short form, whatever short forms you have used in your document,
ऊपर डॉक्यूमेंट बनाते समय आपने जितने शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म्स को आप डिस्क्राइब करके, यहाँ पे एक सेक्शन होता है लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स का, वहां पे आप लिख देते हो. सो दिस इज योर लिस्ट ऑफ एक्रोनिम. अंडरस्टूड? Yes, sir. नेंसी? Yes, sir. ओके. सुभाष? Sardev? Yes, sir. Yes, sir. Now the last content of BRD is the related document. Okay. Now in this content of BRD, you are going to attach all the document which is related to your project. आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी यू कैन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे डाल देते हो. एग्जाम्पल अगर कुछ आपके डायग्राम्स है, इफ यू वांट टू हैव सम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई एक्सेल है, कोई वर्ड फाइल है, तो वॉट एवर फाइल्स दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, that is related to your BRD, that you are going to attach in the section called related document. So you are having the specific section in the BRD where you will be able to directly attach the thing. कोई भी attachment अगर करना है उसके लिए you are having the field called related document. Understood? Related document. Nancy, Subhash, Yes, sir. Sarvesh, Yes, sir. Prashant. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So this all is your content of BRD, guys. Okay. So today actually I'm also not feeling well. सर दर्द ही हो रहा है, गोली खा ली है. तो and most of you are outside. शशांक is in hospital. नैन्सी रोड घूम रही हैं, है ना. And सुभाष तो ठीक है, but this is also outside. So well, do you have any question related to BRD as of now? Nancy, Subhash, Parvez, Prasad. No, sir. No, sir. Right. No, sir. Clear. Okay. So we are going to Yes, wrap sir. up class. Yes, sir. इसका सर वर्ड फाइल बस अपलोड करिए सर आराम से. कल करूंगा, अभी ना, अभी मैं आउट हूँ. ठीक, आउट आराम से सर. सर्जन है, ठीक है. श्योर श्योर. So at night प्लीज वाला मेडिसिन लीजिए, आप भी टेक केयर करिए सर. सीजन चेंज हो रहा है बहुत हाँ, तेज. बहुत मेरे को अच्छा ही लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है. इट्स फाइन. आई डोंट वांट टू मिस द क्लास टुडे क्योंकि ऑलरेडी दिन क्लास मिस हुई थी क्लास में इन द ड्यू टू ट्रैवल एंड ऑल. बट ठीक है. नाउ आई वांट यू टू गाइस, जब मैं आपसे मंडे क्लास में पूछूंगा तो सबसे पहला पूछूंगा, सबसे एक ही पूछूंगा मैं कि प्लीज टेल मी दैट मंडे वी आर गोइंग टू हैव टेस्ट. मंडे Sir, तुम्हारा Monday or टेस्ट है. Tuesday, sir, you told on Tuesday, right? हाँ. You told it on Tuesday, right? ओके ओके. आई तो ट्यूसडे क्या? नैन्सी कब बोला था मैंने? Yes, sir. Tuesday. Very good. Very good. So we are going to have test on Tuesday, guys. Sorry, मैं भूल गया था. So this Tuesday it will be the test. ठीक है, कोई बात नहीं. ये सैटरडे संडे आप पढ़ाई करो. Expectation will be you should able to learn all the things जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से चीजों को देखना, and then I'm going to take test on Tuesday. Tuesday कैसा, क्यों Tuesday क्यों बोला मैंने, मंडे क्यों नहीं बोला? Any reason, guys? You know? Sir, there was no reason, but you gave the timeline for 3 days like that. Okay, I give you the timeline for 3 days, and that is including Tuesday. Okay, okay. Yeah. Understood. Now I understood. So on Tuesday we are going to have test. What we're requesting all of you to utilize this particular days to prepare your preparation for your test as well, guys. Okay. If you feel anything that you want to discuss with me, you are free to call me in between. Weekend है, आप मुझे call कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. Thank you so much all for joining today class. Good night. Thank you, sir. Thank Good you, night, sir. Take care. Good night, all. Thank you. Good night. Bye, sir. Good night.